Hello everyone and welcome back to my channel. In this video I'm going to discuss one sample paper of class 11th retail and ये आपका sample paper जो है CBSE ने prescribe किया है. ठीक है, it is of the session 2024-25. Let me use this pen. तो पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का है. There are two sections A and B. सेक्शन A जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा बेटा, जो 30 मार्क्स का है एंड सब्जेक्टिव है आपका सेक्शन बी, वो भी आपका 30 मार्क्स का है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका 6 क्वेश्चंस है जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है. हर क्वेश्चन 1 नंबर का है. फर्स्ट पार्ट इज नेम अ कमांड is used to insert or delete a table in a document and format it. So कौन सी कमांड है जो टेबल को इंसर्ट या डिलीट करने के लिए डॉक्यूमेंट में यूज की जाती है? द आंसर इज टेबल, राइट. देन पार्ट 2, which of the following is not entrepreneurial value to be followed by entrepreneur? So कौन सी नहीं है entrepreneurial value? The answer is disrespect. बाकी इंडिपेंडेंस, ऑनेस्टी, ट्रस्ट ये एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज है. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली, लुकिंग डिसेंट एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज? सो द करेक्ट आंसर इज एवरी एक्सप्रेशन लीव्स नो इम्प्रेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है. हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली, लुकिंग डिसेंट and positive body language. So the answer is every expression leaves no impression, right. Fourth आपका है which of the following is not a part of 4 hours of sustainability? इसमें आंसर है recreate. Fifth, it is a feeling of certainty that something exists and is true, especially one without proof. So belief है. Sixth है which type of communication aim for both sides to win in a situation, balancing one's right with the right of others? So the answer over here is assertive. ठीक है, assertive एक communication type है, right? It aim for both sides to win in a situation. तो ये employability skills के थे बेटा. क्वेश्चन 2 में 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं एंड हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. सो फर्स्ट पे आपसे क्या पूछा गया है? इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट. सो क्रेडिट रिक्वेजिशन इज द आंसर. सेकेंड पार्ट, which of the following is a process for managing the prevention of work related injuries and diseases at a workplace? So health and safety program. Third, dash sales refers to sales made to other business rather than individual consumer. The correct answer is B2C, that is business to business. Fourth, the credit repositioning agencies measures the what? It measures the credit worthiness. Of customers. Fifth, which of the following does not relate to 5 C's of credit worthiness? So creativity. बाकी जो करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल दिया हुआ है, it relate to 5 C's. 6. What should be made available to reduce seriousness of injury in retail stores? So the correct answer is first aid. What should be made available? Right. Seventh है, it is the borrower's net worth. The correct answer is capital. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में 7 में से आपको 6 करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. विंडो डिस्प्ले इज द डैश originated sales promotion. So the correct answer is retailer originated sales promotion. A risk assessment examines the
conditions at workplace. So hazardous condition, रिस्क असेसमेंट आप करते हो तो वर्क प्लेस में कौन सी ऐसी प्रॉब्लमेटिक हैजार्डस कंडीशंस है पता लग जाती है. विच ऑफ दीज इज नॉट essential element of contract of sale? So the right answer is A. Registration and maintenance is compulsory in organized retail business. Right? आपको अगर ये एक बारी अपने आप ही आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद गेस करिए क्या आंसर होगा. देन जो भी आंसर मैं डिस्कस कर रही हूँ देखिए आपका मैच हो रहा है या नहीं. राइट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OHS? ऑक्यूपेशनल health and safety. Then 6, a retailer before extending credit should verify a customer to repay among other things. So ability, ठीक है, कस्टमर को उधार देने से पहले देखना चाहिए कि कस्टमर की एबिलिटी है वापस करने की या नहीं. कीपिंग अ डैश सिक्योरिटी गार्ड will avoid risk of robbery and shoplifting. क्वेश्चन 4 में 6 में से 5 करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है. CRM is customer relationship management. Then which of the following is the most commonly used floor plan in Indian retail industry and is economical as well? Straight floor plan बेटा right answer है. Which of the following is a specific skill? So carpentry. Then dash and recording of accident and emergencies are legal requirement for a retail stores. Reporting and recording. Fifth, a person who regularly buys milk from the supermarket is a loyal customer. How will the sales executive respond when an item is not available to the customer? So when the item is not available, he should respond with positive language. Okay. VPN का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल प्राइवेट नेटवर्क. सेकंड का आंसर है स्किल इज एन एबिलिटी टू वर्क विद एक्सपर्टीज. Which of the following should be up to date for customer data protection? IT system. Fourth है it is a web based sale. So electric based is a web based sale. Which of the following is an example of franchising? McDonald's का example है बेटा franchising का. Then which service refers to all the things a retailer does for the care of their valued customer? अगर कस्टमर गुड्स खरीद लेते हैं उसके बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो हम बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस. नेक्स्ट 6 में से 5 करने हैं आपने और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. इन रिटेलिंग प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गुड्स और मर्चेंडाइज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash operate between manufacturers and retailers. Wholesaler. So manufacturer, then wholesaler, then retailers. Then third, it is the first item offered for sale. Product. The local kirana is an example of unorganized retailing. ठीक है. उसके बाद next fifth part, it highlights various product offering along with their brief description. So product web page में पूरा प्रोडक्ट कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी दी जाती है. गिव द फुल फॉर्म ऑफ CSA, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स. आफ्टर दिस सब्जेक्टिव आ जाता है हमारा. ये फर्स्ट ये जो 7 to 11 आप देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है. हर क्वेश्चन 2 मार्क का है लेकिन आपको 5 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सो and entrepreneurs often exhibit certain attitudes. List any two. तो आप इसमें लिख सकते हैं कि entrepreneurs take moderate risk, right?
then they use imagination. बाकी आप लिख सकते हैं कि वो पैशनेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होता है, दे हैव द एबिलिटी टू डील विद फेयर, दे एनालाइज द सिचुएशंस। बहुत सारे हैं पर आपको दो ही लिखने हैं, तो मैंने यहाँ सिर्फ दो ही पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स इन ग्रीन इकोनॉमी? स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर वो होता है जो इफेक्ट होता है या इफेक्ट कर भी सकता है बाय द ग्रोथ और फॉल ऑफ द इकोनॉमी। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है ग्रीन इकोनॉमी में इज अ स्टेक होल्डर। ऐसे ही प्राइवेट एजेंसीज, पीपल इन जनरल, ऑल आर स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो इफेक्ट भी होते हैं और इफेक्ट भी करते हैं। कोई भी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है या फॉल इकोनॉमी हो रही है तो उसकी वजह से दे गेट इफेक्टेड एंड दे इफेक्ट ऑल्सो। नेम ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection। राइट। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैंने लिखा नहीं है। आप वीडियो अगर नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लिख सकते हैं आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेज ऑप्शन? मैनेज ऑप्शन क्या करता है? इट ओपन्स द मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स। आप जितना इसमें, इन दिस ऑल द चेंजेस आर डिस्प्लेड इन अ लिस्ट। आप कोई भी पर्टिकुलर चेंज सिलेक्ट करके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। So I am just dictating the answer. If you want to write down, you can write. Manage option opens the manage changes dialog box. In this, all the changes are displayed in a list. You can select a particular change and accept or reject it. Okay, what is the write the importance of personal hygiene? क्यों important है? It stays you healthy. Then it creates a good image, etc. Okay, now from question 12 to 16, 5 में से 3 करने हैं और 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। डिफाइन एर्गोनॉमिक्स। सो इट इज द साइंस ऑफ मैचिंग अ रिटेल स्टोर्स रिक्वायरमेंट टू द रिटेलर्स कैपेबिलिटी। ठीक है। इसमें मैंने आपको जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तो बताया भी था कि जो स्टोर का जो स्टोर में काम करते हैं तो देखा जाता है कि वेदर द वर्क प्लेस इज फिट टू एवरी पर्सन हु इज वर्किंग और विजिटिंग द स्टोर। तो अगर जैसे रिटेलर ने किसी वीक पर्सन को हायर किया है, ठीक है, हैवी बॉक्सेस लिफ्ट करने के लिए, तो चांसेस है कि इंजरी हो जाएगी ड्यू टू पुअर एर्गोनॉमिक्स। ठीक है। आपको स्टोर की रिक्वायरमेंट देखनी है, कैपेबिलिटी देखनी है और स्टोर की रिक्वायरमेंट देखनी है और उसको मैच करना है रिटेलर्स की कैपेबिलिटी के साथ। 13, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट हु आर इन्वॉल्व इन एजेंसी बेस्ड रूल्स। सो सेल्स एजेंट हो गए, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए आंसर अगर लिखना है। सेल्स एजेंट, सेल्स आउटसोर्सिंग थ्रू डायरेक्ट ब्रांडेड रिप्रेजेंटेशन, फिर ट्रांजैक्शन सेल्स हैं, कंसल्टेटिव सेल्स हैं, कंसाइनमेंट सेल्स हैं, टेली मार्केटिंग और टेली सेल्स रिटेल सेल्स हैं। तो एनी टू यू कैन लिस्ट। हाउ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, 14th क्वेश्चन आई एम रीडिंग, हाउ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डज हेल्प द कस्टमर। सो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अगर कस्टमर के पास होगी तो ही कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। उसको पता है कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर ही कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि क्या प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, कर पाएगा या नहीं। एंड साइज, शेप, कलर क्या होगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। डिफाइन द टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब होगी? अगर जो कस्टमर्स है व्हाट ही विल कंपेयर द वैल्यू, he will value when the value and the customer services provide through a retailing experience meets or exceeds customer expectation। देखो कस्टमर जब भी कोई चीज खरीदता है तो ही कंपेयर्स बेनिफिट्स विद कॉस्ट। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो he will get satisfaction। Define B2B sales। B2B sales कौन सी होती है? जिसमें sales is made by other businessmen rather than individual customer। दो businesses हाउस के बीच में transactions हो रही है। ओके, क्वेश्चन 17 to 19 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन।
सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर्स को स्टिमुलेट करना ताकि वो गुड्स को खरीदे, सेल्स इंक्रीज करना, राइट, इनकरेज करना कि कस्टमर्स बार बार आए, सो encourage repeated purchase, etc. Mention any two characteristics of credit sales. So यहाँ पे ट्रांसफरर जो है डील्स किस में करता है? गुड्स एंड सर्विसेज में। पहला करेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गया। और जो गुड का टाइटल है वो किसके पास रहता है? इट लाइज विद द सेलर ओनली बिफोर इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब तक गुड्स सेल नहीं कर देता क्रेडिट पे बायर को, तब तक ओनर या टाइटल कौन रहता है? सेलर, राइट। एंड ज्यादातर क्रेडिट एक्सटेंड होता है फॉर 3 मंथ्स एंड कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए इसमें। व्हाट इज क्रेडिट रिक्विजिशन? क्रेडिट रिक्विजिशन का मतलब होता है बेटा रिक्वेस्ट करना क्रेडिट के लिए। अगर बायर एक साथ कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा गुड्स खरीदने के टाइम, तो ही कैन रिक्वेस्ट द रिटेलर कि उसको अभी गुड्स जो है वो क्रेडिट पे दे दे। एक्सप्लेन 4 P's ऑफ कस्टमर सर्विस। तो डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज प्रॉम्प्टनेस। देखिए यहाँ 5 में से 3 करने हैं आपको और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। सो पोलाइटनेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रोफेशनलिज्म। देन पर्सनलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन 21, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज टू द राइट पर्सन? तो इसमें जो भी इंजरीज या एक्सीडेंट या इमरजेंसीज होती है, तो इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयर को बताया जाए या उसको बताया जाए जो स्टोर को मैनेज या कंट्रोल कर रहा है। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन बेसिकली देनी चाहिए? वर्क रिलेटेड डेथ, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, या कस्टमर्स को कोई इंजरी हुई है, एक्सेट्रा। क्वेश्चन 22, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर इनकरेजिंग कस्टमर्स? तो कस्टमर्स को इन्फॉर्म रख के आप उनको इनकरेज कर सकते हो, वो आके आपसे चीज़ें खरीदें। उनको हैंड रिटन नोट्स दे के टॉक टू द कस्टमर्स, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंट ओकेजन्स याद दिला के, बर्थडे विशेस विश करके, हैप्पी बर्थडे मैसेजेस एक्सेट्रा। नाउ एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्रोमिसेस मेड टू द कस्टमर्स। सो टाइप 1 आपका, ये भी डिटेल वीडियो में, आप प्लीज गो एंड वॉच दैट अगर आपने नहीं देखी है। तो टाइप 1 जो है वो है ऑफर रिलेटेड प्रोमिसेस। टाइप 2 इज क्वालिटी रिलेटेड प्रोमिसेस। टाइप 3 is promises related to easy shopping. Type 4 promises related to competent service, etc. And the last question is 24. Nishant works in a retail store at the post of sales associate. One day he finds that a customer is getting upset. While some of the reasons are justified, others are not. The customer was very angry at Nishant. How will he deal with the customer? अब निशांत जो है वो सेल्स एसोसिएट है और कस्टमर के साथ डील कर रहा है। जो कस्टमर बहुत ही एंग्री है, वो कैसे उसे डील करेगा? ही कैन अपोलोजाइज। निशांत अपोलोजाइज कर सकता है, आई एम सॉरी, ठीक है, पर्सनल अपोलॉजी करके, सिंपैथाइज करके कि ही कैन टेल द कस्टमर आई कैन अंडरस्टैंड कितना पेनफुल है आपके लिए। तो जस्ट एम्पैथाइज, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस वी एग्री, वी आर एट फॉल्ट। Then you are also ready to help them कि I am going to fix the problem, I will replace if the product is defective, etc. and so on. So I will be sharing more sample papers, right? So that आपको पता लगे कि किस तरह के questions are expected in the paper. Till then, please stay tuned to my channel and happy learning. Thank you. Thank you for watching the video.